Hi everyone, this is your life coach Venika Sokija back again here with Pickup Pile reading for your current situation. आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है and I believe if you are watching this video then definitely you're one of them to hear any of these three messages that you're meant to choose. So whatever is the situation that you are seeking the guidance for, think about that situation with a very calm mind. Relax yourself completely. इतना relax करो खुद को, maybe through deep breathing or by randomly playing some music, and then choose either of these crystals that attract you the most. Either this red jasper, green aventurine or amethyst. You can also look for the colors जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, रेड है, ग्रीन है या पर्पल है. Hold the video or pause the video for a while and then we'll pick it up one by one. So in this video today, each crystal has 3 cards under it. The first card is about your current situation. The second card is about the blockage जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, or the barrier that is creating many of the hurdles or maybe some of the hurdles. And the third card is what should be done. I hope you all have chosen your respective crystal. Please do let me know in comments post listening to it, and the timer is mentioned in the description. तो अगर आपने ग्रीन या पर्पल, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विद द रेड वन, ये क्रिस्टल्स चूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली टैप ऑन दैट टाइमिंग एंड यू कैन स्टार्ट लिसनिंग टू दैट रीडिंग. लेट्स बिगिन विद द पाइल विद रेड जैस्पर. The ones who have chosen this red jasper crystal, जिन्होंने ये रेड कलर का क्रिस्टल चूज़ किया है, लेट्स सी आपकी लाइफ में इस टाइम पे रादर what is the current energy, what is the blockage to move on, and third card will reflect upon how you should take up the move. So all the ones who have chosen this red colored crystal, guys, believe me, you have got amazing manifestation powers. अगर आपने रियलाइज़ नहीं करा आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो पास्ट के कुछ टाइम में मे बी आप इतने अवेयरनेस में अपनी कनेक्ट करके देखो कि आप बार बार अपनी चीज़ों को, हो सकता है कि जो चीज़ें आप सोच रहे हो वो इंस्टेंटली सामने आ रही हैं. कुछ लोगों को आप में से ड्रीम्स ऐसे आते होंगे जो रियलिटी का पार्ट बन जाते होंगे लेटर ऑन, या फिर आपकी गट फीलिंग, आपकी इंट्यूशंस आपसे पहले ही पोक कर रही हैं कि दिस इज़ द रियलिटी और दिस इज़ दैट इज़ अबाउट टू हैपन. Out of this, being in that energy is really very good. But जो blockage है इस टाइम पे, it's the emotional breakdown. आप बहुत सारी पास्ट की चीज़ों को लेके या फिर अपने पुराने एक्सपीरियंसेस को लेके मे बी बहुत डिस्टर्ब्ड हो. एंड दो you are the magician yourself, आपके पास ऐसे टूल्स हैं मैनिफेस्ट करने को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपका बिलीव आ रहा है, फिर भी मे बी बिकॉज ऑफ द पास्ट इंसिडेंट्स या पास्ट की इमोशनल चीज़ें आपको बहुत ट्रिगर कर रही हैं, दैट इज़ मेकिंग यू फील लोनली. इट्स मोर लाइक सब कुछ होते हुए भी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं है. माइंड शांत रहने के बाद भी थोड़े थोड़े टाइम बाद ओवर थिंकिंग का जो एक ग्लिम्स है वो आपके माइंड में आता है. सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करने के रीज़न के बाद भी आपको ऐसा लग रहा है कि लोनलीनेस है. सो लेट्स सी व्हाट शुड बी डन, बिकॉज दिस इज़ द करंट सिचुएशन. आपने जिस भी सिचुएशन के बारे में सोचा है, सो दिस इज़ व्हाट योर कार्ड्स आर सेइंग, right? So what should be done? Let's just focus upon, you have got the card of Ace of Swords. That clearly means you have to begin with something new. That can be, a change in your belief system, change in your confidence. So that change is to be brought. वो change आपके अंदर कैसे आएगा? You can practice writing journal. आप अपने thoughts को journal कर सकते हो. जो भी आपके मन में आ रहा है, start writing it up. Right? Doesn't matter वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. The whole idea behind writing here is just to pour your heart out. You need to cleanse your mind basically. बहुत ज़्यादा आपका माइंड जो है वो occupied है, तो meditation will really be great act for you. Other than that, आप योगा प्रैक्टिस करो, connect yourself to the universe.
You are planning a lot. It clearly is shown in the cards. आप बहुत calculations कर रहे हो, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो. That is okay, but ask yourself, how am I calming down my mind? मैं खुद को शांत कैसे कर रहा हूँ या कर रही हूँ. मैं खुद के लिए क्या काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ जिससे मेरा माइंड रिलैक्स रहे. ऐसा कुछ कर रहे हो. आप गार्डनिंग कर सकते हो, आप सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो. ग्राउंडिंग की कोई भी टेक्निक फॉलो करो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, राइट. थोड़ा सा जो आपका ये जो इमोशनल लेवल ब्रेकडाउन है, इसको रिकवर करना है. जिसके लिए जो क्रिस्टल है, दैट इज़ द रेड जैस्पर एंड द रोज क्वार्ट्ज. एंड अदरवाइज आप बैक फ्लैट थेरेपी भी ले सकते हैं. बैक फ्लैट से आप खुद को हील कर पाएंगे. मेडिटेशन, ऑफ कोर्स एज आई मेंशन बिफोर, ग्राउंडिंग टेक्निक्स को फॉलो करो. आप कैंडल के साथ मेडिटेशन प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, वो भी आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगे. Let me know if it is relatable. Please do comment down and stay tuned for more such videos. Stay empowered, stay blessed, and please don't forget to like, share, and subscribe. Hey, pile 2, those who have chosen this green aventurine. Let's see what does tarot has in store for you. I hope you have thought about your current energy. देखते हैं आपकी current situation क्या है, blockage क्या है, and आपको क्या करना चाहिए. All right, for the people who have chosen this pile, I see you to begin, or you have already begun for something very new in your life. आप बहुत केयरफ्री नेचर में हो, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ रहा. यू आर टेकिंग इट सो लाइटर, राइट. इसके साथ साथ ये एनर्जी मुझे ये भी बता रही है, दो यू आर इन दैट मोड कि यार छोड़ परे, बस कोई परवाह नहीं है, चलते रहते हैं, ज़िंदगी है, इंजॉय करते हैं. ऐसे सब फेजेस, बीइंग इन दैट केयर फ्री जोन इज़ ऑफ कोर्स अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ हीलिंग, बिकॉज यू फील थ्रिल्ड, यू फील ऑप्टिमिस्टिक. बट बाद में क्या आपको एंग्जाइटी सेंस हो सकती है. केयर फ्री होना इज़ ओके, रादर दैन आई वुड से कि अगर आप खुद के लिए केयरफुल हो जाओ, दैट विल ब्रिंग इन मोर जॉय एंड मोर हीलिंग to your energies. Also have enough amount of water. Patchy skin के कोई issues is what I see. Dehydrated मत रहना at any cost. खूब सारा फाइबर खाओ, खूब सारा पानी पियो. एंड ये जो स्टेट है ना, ये कुछ घंटों के लिए या एक आध दिन के लिए बहुत अच्छी है. अगर इससे ज़्यादा हम बोलते हैं कि हम लिमिट्स को एक्सीड कर दें, तो डेफिनेटली हमारे अंदर ऐसे थॉट्स आते हैं कि हम केयरफ्री नेचर को अपना रूटीन का पार्ट बनाते हैं. बट अगर आप कोई प्रोफेशनल हो या बिजनेस पर्सन हो या फिर एक स्टूडेंट हो, तो डेफिनेटली सूनर और लेटर आपको उसको पे ऑफ करना पड़ता है. ऑल सेट. एंड जो मुझे क्रिस्टल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आपके लिए यहाँ पे इज़ एमेथिस्ट. सेकेंड इज़ व्हाट इज़ द ब्लॉकेज. क्योंकि देखो, आप कितने केयरफ्री मोड में हो, यू आर अनएबल टू फोकस, यू आर अनएबल टू ग्राउंड. दैट इज़ द ब्लॉकेज. पर प्लीज़ ये जो आप नहीं कर पा रहे हो, ग्राउंडिंग है या फोकस को मेंटेन करना है, उसके लिए यू हैव टू प्रैक्टिस एनी सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी. दिस इज़ व्हाट, बिकॉज द हायरोफेंट इज़ ऑल अबाउट डूइंग सम रिलीजियस और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. आप किसी भी मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हो, कुछ भी ऐसा रिसाइट कर सकते हो. मे दैट बी द स्विच वर्ड्स, इवन द एफर्मेशंस, ऑल ऑफ देम विल हेल्प यू टू बी फोकस्ड. एंड अगर ये केयर फ्री जोन आया है तो ये डेफिनेटली ऐसा बताता है कि आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में थे, तो इसलिए आपने सोचा कि थोड़ा सा ब्रेक लेके चिल मारते हैं. दैट इज़ ओके. यू हैव हील्ड योर सेल्फ. नाउ इज़ द टाइम कि आप थोड़ी देर बैठ के खुद के साथ बात करो, खुद को समझो, अपना फोकस जो है उसको रीगेन करो, राइट. वो क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, दैट इज़ बीइंग द ब्लॉकेज, कि आप इस एनर्जी से शिफ्ट नहीं कर पा रहे हो. एंड हाउ दैट शुड बी डन इज़ लाइक आई ऑलरेडी मैंशन. एंड यहाँ पे बड़ा सुंदर किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है. व्हेन यू सिट अमंग द एनर्जीज ऑफ दैट पर्टिकुलर आई वुड से आउटकम, जैसे अगर किसी को बिज़नेस करना है तो वो बिज़नेस के लोगों के आसपास बैठ सकता है, लाइब्रेरीज़ में जाके ऐसी बुक्स को और मैगज़ीन्स को एक्सप्लोर कर सकता है. यू नीड टू अट्रैक्ट दिस एनर्जी,
यू नो। सिर्फ हम बंद आंखों से अपनी रियलिटी को नहीं देखेंगे, हमने खुली आंखों से प्लानिंग करनी है. दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू. बी इन दैट कॉन्शियस, बी इन दैट लाइट, जिससे आपका फ्यूचर आप खुद प्लान आउट कर पाओ. मैनिफेस्ट करो. And I feel most of you are just focusing upon the opportunities in your career. They are about to come. You need to manifest and attract them. Do it in a very simple and smart way. And हम बहुत सारी manifestation techniques से बहुत opportunities को attract कर सकते हैं. So either of them would work, but you really need to find what works best for you. I hope it helps. Please do comment down if it does. Wish you more power, and please don't forget to like, share and subscribe. Hey, the ones who have chosen amethyst as their crystal. So let us see what is there in the cards for you. Here we get your current energy, the blockage, and what should be done. So the ones who have chosen amethyst, this is a clear sign. आप लोग बहुत ज़्यादा पैसिमिस्टिक सोच रहे हो, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिव थॉट्स, पास्ट के सेटबैक्स, इलनेस, डिस्करेज, ये सब आपके माइंड में, आपके ऑरा में वाइशस सर्कल में घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है एंड घूमता जा रहा है, राइट? तो प्लीज़ ये जो नेगेटिविटी का एक ब्लाइंड फोल्ड जो आपने पहना हुआ है, यू नीड टू अनलीश, यू नीड टू अनकवर, यू नीड टू सी द रियलिटी, यू नीड टू बी होपफुल. I know it's better, said than done, but of course you have to take that smart move. So this is a very clear sign that चीज़ें शायद इतनी ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, आप देख बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहे हो. आपने एक्चुअल में वो स्पेक्स पहन ली है आंखों के सामने जो आपको बार बार डाइवर्ज कर रही है, ऐसे एंड्स पे लेके जा रही है, डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जैसे आपको लगता है ओहो क्या ही होगा. इनसिक्योरिटी, फियर्स, ये बहुत ज़्यादा पॉपअप होते हुए नज़र आ रहे हैं. ऑल राइट, मूविंग टू व्हाट इज़ द ब्लॉकेज. आप इस सिचुएशन से क्यों नहीं मूव ऑन कर पा रहे हो? दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि आप किसी की सुन ही नहीं रहे हो. यू आर नॉट इन दैट वाइब. मे बी आपके आसपास के लोग सेम फ्रिक्वेंसी में हैं, सेम वाइब्रेशन में है. दे इवन टॉक अबाउट ऑल वट यू थिंक. यू आर मैनिफेस्टिंग, पता है इस वाइशस सर्कल के कारण यू आर मैनिफेस्टिंग दोज टॉक्स, यू आर मैनिफेस्टिंग दोज गॉसिप्स, यू आर मैनिफेस्टिंग दोज पीपल अराउंड जो सेम चीज़ें या सेम फ्रिक्वेंसी पे हैं. यू रियली नीड टू बीट दिस हीट. हाउ कैन यू डू इट? वेल, दिस इज़ मोर लाइक अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस. आप क्यों ऐसा फील कर रहे हो? आस्क योर सेल्फ, ऐसा क्या हुआ कि इतने नेगेटिव क्यों हो? इज़ इट समथिंग लाइक इन द पास्ट? Or is it something that is being like किसी और के negative perceptions, assumptions, experiences को आप assume करके बैठे हो कि मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है या हो सकता है. You are not being into that mode कि every person has a different soul plan on this earth. आपकी लाइफ आपकी है, किसी और की लाइफ किसी और की है, और जो आप सोचते हो वो आपके साथ होता है. जो आपके लेसन्स हैं वो आपके हैं, वो किसी और के नहीं हैं, और किसी और के लेसन्स आपके तक नहीं आएंगे. इट्स अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग, इट्स अबाउट योर अवेयरनेस. सो दिस मैसेज, क्योंकि ये मून का कार्ड है, ऐसा लग रहा है आप इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट में हो. आपके ही अंदर दो दिमाग भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, अपोजिट एंड्स पे हैं, विच इज़ नॉट प्रोवाइडिंग यू पीस. Meditation is something that I recommend for you. Have enough amount of water. मून की एनर्जीज के साथ आप काम कर सकते हो, बट अभी न्यू मून में टाइम है. प्लीज़ चेक ऑन द, अगर आप कहीं बाहर से देख रहे हैं तो आप अपने गूगल पे जाके सर्च करिए व्हेन इज़ न्यू मून. एंड फुल मून पे प्लीज़ डू क्लेंज योर सेल्फ. यू बेसिकली नीड टू क्लेंज योर इमोशंस, अंडरस्टैंड देम रियली वेल एंड देन मेक अ शिफ्ट. क्योंकि जब तक आप बिना अंडरस्टैंडिंग के शिफ्ट लोगे, इट विल मोर बी लाइक कंसीलिंग योर थॉट्स फॉर अ वाइल. You really need to work upon yourself. And yes, the crystal that I get for you is again the clear quartz and the amethyst. You need to wear this. Balance out yourself. This is what the messages are from the cards. जितना बैलेंस करेंगे खुद को, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी. I hope the reading resonates, and please do connect out अगर बहुत ही कुछ severe है. Do comment if it is resonating. Don't forget to like, share and subscribe. Stay tuned, stay empowered, stay blessed.